uh, before I begin with anything, a small request, please silent your phones. Also silent your alarms. कभी कभी फ़ोन तो साइलेंट कर देते हैं, फिर वो एक दवाई का या एक मीटिंग का कुछ एक अलार्म भी बजता है. सो थैंक यू. प्लीज़ लेट्स हैव एन अनइंटरप्टेड इवनिंग. As I was thinking today morning about how to introduce the book, and the first thing that came to my mind is हमने अभी 1.5 साल पहले प्रेरणा जी की 2 किताबें छापी थी, the Hindi and its English translation, and again we've brought out 2 books. If an author chooses a publisher again, and if the publisher chooses the author again, it really talks about not only the equation but also the comfort level, the extended family, and it's a very warm feeling. And last time when we were working on the book, halfway through when I was having a discussion with प्रेरणा जी, और उन्होंने मुझसे कहा कि सबा एक बात समझ में आ गई है कि आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है. बोथ ऑफ अस वांट दैट द बुक शुड बी गुड, एंड दैट काइंड ऑफ put everything in place, and that is the kind of a person Prerna ji is. And when I look at the hall here and I realize I cannot give a kind of an introduction to the company or to the publishing house, because I've done that n number of times and everyone knows everything. And in the span that we started out as a company for literary merchandise and then developed into, extended into the publishing house, we've just extended the family. And the moment you say you need some help, and you have someone coming up to help with the edits or with the cover, or this is just the family, or everyone braving this traffic on a weekday to come and celebrate the book. And Prerna ji needs absolutely no introduction, so I don't want to stop over here. Let's just start, and maybe please have Suman ji on the stage. Suman ji, Prerna ji, and Meeta, please. सुमन जी, आपका नाम पहले लिया बिकॉज आपका हाथ हम सब के ऊपर है. नहीं, असल में जिसने किताब लिखी है फिलहाल तो जो रचना करता है वही सबसे ऊपर है. मैं इस रचनाकार के पीछे जिनके हाथ हैं वो मुझसे मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. को आप लोग इम्पोर्टेंस देते जाइए. आज वैसे कमान मेरे हाथ में. That's very well put, Meeta. Let's just start with the releasing of the book first, and then Meeta will take over with the moderation. Yes, yes. बिफोर मीता टेक्स ओवर, एक और ख़ासियत ये होती है कि जब फोटोग्राफर कहानियाँ लिखने लगता है तो आपको कवर की भी फ़िक्र नहीं होती है. सो फ़िक्र ये होती है कि शी इज़ सच अ renowned photographer. She teaches photography and she's writing about photography and social issues. So फिर एक वो भी काम आसान ही हो गया कि अच्छा भाई ठीक है, इनकी कौन सी वाली तस्वीर इस मर्तबा आए. So these are 2 books she's written. It's a collection of short stories which she's written in Hindi, and she has translated it herself into English. So we have the collection of, और किताब का नाम है बेजोड़, Unmatched in English. Over to you, Meeta. Thank you so much. And it's absolutely amazing to see echo आ गया ना. हाँ है. ये बन अब बाकी बन जाए.
It's absolutely amazing to see that moment जब किताब प्रेरणा के हाथ में थी और सबके हाथ में थी, एक जो चमक हर एक इंसान के आंखों में थी, उस अपनेपन की क्या बात करें। वो जो अपनापन प्रेरणा लाती हैं हमारे गैदरिंग्स में, हमारी इंटरेक्शंस में और अपनी कहानियों में, ये वाला अपनापन अपने आप में ही खास है। और ख़ास कहानियाँ हैं, लेकिन कहानियाँ के जो सिचुएशंस हैं वो शायद हम सब के लिए बहुत आम हैं। तो अभी मैं इनफैक्ट सभा से पूछ रही थी कि एक बहुत पुराना प्ले आया था, 1908 का प्ले था, J.M. बैरी ने लिखा था, एंड इट वाज कॉल्ड अ सीक्रेट दैट एवरी वुमन नोज। तो वहाँ पे एक किस्सा था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने होते हैं, जो भी होते हैं, इंपॉर्टेंट हस्बैंड होते हैं, और पीछे से औरत अपनी फुसफुस मीटिंग करते करते बताती जाती है कि अच्छा ऐसे मत करो, स्पीच वैसे कर लो, ऐसे मत करो, वैसे कर लो। ये जो कहानियाँ हैं ना, एक और सीक्रेट है दैट ऑल विमेन नो। और एक दुनिया है हमारी जो शायद जो इस एंड वी गोइंग टू यूज बोथ लैंग्वेजेस ऑब्वियसली टुडे बिकॉज द बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन बोथ लैंग्वेजेस। एक माहौल होता है जब औरतें इकट्ठी होती हैं और हम एक दूसरे को अपने किस्से सुनाते हैं। प्रेरणा ने एक कमरा गैदर किया, बाइंडिंग वगैरह सभा ने की, मेहनत सभा ने की बहुत, और उस कमरे में हम सबको खींच के ले आई और उस कॉन्वर्सेशन में हम सबको खींच के ले आई। तो एक मान लीजिए जैसे कि अच्छी सी धूप है, चारपाई पे बैठे हुए हैं, कोई मूंगफली चाय ले आएगा, प्रेरणा अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, बाकी दुनिया रहे कमरे से बाहर। इस तरह का एक अपनापन भी लाती हैं कहानियों में, और हर एक कहानी में एक मतलब भी होता है ऑब्वियसली। अब सारी कहानियाँ तो आपकी बच्चियाँ हो गई, सबसे मुश्किल सवाल सबसे पहले पूछ लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो सारे थीम, एनालिटिक्स ये सब करते रहेंगे आप। सबसे मुश्किल सवाल ये है कि सबसे प्यारा मोमेंट आपका, और सुमन जी आपसे भी एग्जैक्टली यही पूछूंगी इसके बाद, कि इन सब कहानियों में सबसे प्यारा मोमेंट या सबसे जो मोमेंट आपके पास रह गया, या तो क्योंकि वो पूरी कहानी मुकम्मल नहीं हुई, और बिकॉज इट वाज सच अ स्पेशल ब्यूटीफुल मोमेंट दैट वी ऑल वेट फॉर इन आवर लाइव्स, ऐसा कौन सा था इन सब कहानियों में से? एक कहानी है जो सबसे पहली कहानी है बॉन्जाई। उसमें उस लड़की को वो एहसास दिलाता है उसका भाई, इट्स नॉट दैट यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। हर आदमी को अपनी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी कुछ हासिल करने के लिए। एंड दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी दैट आई रियलाइज कि बीइंग अ वुमन इज नॉट राइट कि हम खाली वी हैव 1000 प्रॉब्लम्स, तो 10 तो आदमियों की भी होती है। लड़कों को भी अपने घरों में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कंडीशनिंग जो होती है वो इतना ग्रेजुअली और स्लोली होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या कब बॉन्जाई में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। हम अपनी खूबसूरती पे इतराते रहते हैं कि वी आर लुकिंग सो गुड, बट दैट इज आवर कंडीशनिंग फ्रॉम द डे when we are not even born. Our rooms are colored pink. Why? Who told us? Maybe I'd like blue when I grow up. But why was I given all the delicate things? Maybe if I was given a car as a child, I would have liked to be a mechanical engineer and not somebody or a civil engineer, जो बहुत कम आजकल तो होने लगे हैं, पहले तो बहुत कम थे ना। Why should all women doctors be expected to be gynecists? Why can't they do other things? So इसलिए वो कैसे धीरे धीरे, और वो लड़का जब एंटर होता है तो वो आराम लेट आ रहा है, फिर भी आराम से खड़ा हुआ रास्ता बता रहा है। Why is that? A woman, I don't think they should be much more careful about it. So, इसलिए वो कहानी मुझे बहुत प्यारी। एकदम से इतनी सारी लेयर्स में घुसने का मन करता है उसी स्टोरी में, लेकिन उससे पहले सुमन जी आपसे ही पूछते हैं, आपको कौन सा मोमेंट, मैंने सुना आपको तो ये रटी हुई हैं कहानियाँ। मैं एक सेकंड में बिफोर सुमन जी स्टार्ट्स, ये जब फॉरवर्ड लिखती है ना, मेरी पिछली किताब का भी फॉरवर्ड इन्होंने लिखा था और ये भी लिखा, तो मैं अपनी कहानियों से ज़्यादा मुझे वो फॉरवर्ड प्यारा हो जाता है।
कितना बढ़िया एनालाइज करती है उसको। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपकी कहानी पर बात करूं। थैंक यू मीता। और दूसरी बात ये कि दूसरी बारी भी कोई फॉरवर्ड लिखवा ले जाए, मेरा वजन 3 किलो बढ़ गया। इतनी मूंगफलियां खाई उस चारपाई पे बैठे बैठे। इतनी खुश हो गई, फूली ना समझ। देखते नहीं आप खुश दो टोटियां। बहुत क्यूट लग रही है। दरअसल प्रेरणा की कहानियाँ मुझे, मैं ट्रेंड मतलब लिटरेचर और वो भी